Now see the next question, beta. What is the next question? अगर आपकी बार के आपके सीबीएसई के पेपर में देखेंगे तो इसी टाइप का केस स्टडी उन्होंने दे रखा था. क्या था? एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 scooter driver, 400 car drivers, and 1,000 and not 100, and 6,000 truck driver. The probability of an accidents are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. Respectively means that is a scooter driver, car driver, or truck driver. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो यहाँ हम पहले इनिशियल इवेंट में लिख रहा हूँ. आई एम टेकिंग माई B1 एज scooter driver. I'm taking my event as scooter driver. Is that okay? And B2 as car driver. And B3 as truck drivers. Now, what I will take that insured person Insured person meets an accident. Meets Yes. with an accident. Yes. Insured person meets with an accident. Okay, now what we have to find here to find probability B1 given E. ये हमें निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रिपेयर द डायग्राम. सब कुछ तो डायग्राम में दे रखा है. एक बात बताइएगा, टोटल कितने हो गए भाई ये? यानी कि इसका 12,000. तो 2000 बाई 12,000 आ जाएगा इसका. अगले वाले का कितना आएगा? कितने हैं कार ड्राइवर? 4,000 बाई 12,000. देन 6,000 बाई 12,000. तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/6, इसका 1/3 और इसका 1/2. नाउ इसका मतलब ए we have scooter driver meets with an accident and is insured. इसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है? 0.01. The next one is E given B2. उसका कितना दे रखा है? 0.03. Then next one is E given B3. उसका कितना दे रखा है? 0.15. तो सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है, खाली आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट ही करना है. तो विल यू बी एबल टू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला? प्लीज टेल मी. हाँ जी, Yes, sir. यही तो करना ना आपको. 1/6 इंटू 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15. मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ. जो फिगर आती है इसको सोल्व करके, दैट इज टर्निंग आउट टू बी 1/52. तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन? हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay. Now see the 8th question. A factory has two machines A and B. The past record shows that machine A produced 60% of the item of the output, and B produced 40% of the item. Further, 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into two stock piles, and one of the item is chosen at random. From this, it is found to be defective. What is the probability it was produced by machine B? It is a simple one. B1 ले लेंगे, item produced by machine A, by machine A. B2 ले लेंगे, item produced by machine B. E ले लिया, defective item.
you will be taking this as defective item. डायग्राम बना लीजिए, B1 B2 E। तो मशीन ए कितना प्रोड्यूस करी 60%, यानी कि 60/100, और दूसरा है हमारा 40/100। इनके एरर भी दे रखे हैं। तो E गिवन B1 कितना है भाई, जरा बताइए मुझे। 2%, यानी कि 2/100। E गिवन B2 हमारा 1% है, सॉरी B2। और हमें क्या निकालना है, B2 गिवन E। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी B2 गिवन E, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू E गिवन B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E गिवन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1. Now substitute all the values, that is okay, in this case my 40/100 into 1/100 upon 40/100 into 1/100 plus 60/100 into 2/100। अब ये तो आसान है क्योंकि ऊपर नीचे तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। हाँ जी, तो बेसिकली इट इज टर्निंग आउट टू बी आपका जो यहाँ से बनेगा ये 40/160 40/160 1/4 ये 40 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 160 ना। yes sir तो 1/4 इज द आंसर। ठीक है, so please take the screenshot of it. Done? Yes, sir. Now see the next question. Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced by the second group. तो मुझे बताइए what are the B1 B2 event in this case? first group wins First B2 group second or group second? wins First group win, B2 ले लिया हमने, second group wins what is E? second group wins नहीं, introducing a new Produce product, the new product. अच्छा हाँ ठीक है introducing new product। तो भाई अब सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने निकालने के लिए। बताओ जरा क्या क्या दे रखा है। 0.6 एंड 0.4 दे रखा ना इनका प्रोबेबिलिटी, और ये भी दे रखा होगा, देखो जरा ध्यान से। E गिवन B1 कितना दे रखा है 0.7, और दूसरे का दे रखा है 0.3। इज दैट ओके भाई? सेकंड ग्रुप Yes, sir. ये B2 गिवन ई चाह रहा है यहाँ से, तो B2 गिवन ई क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E गिवन B2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी E। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। ऊपर 12 ले लो यार, हैं? क्या कहते हो, बोलो। yes sir और नीचे कितना आ जाएगा 54, तो 2/9 आ जाएगा। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा?
हाँ जी, रिप्लाई Yes, करी. sir. Okay. Now see the 10th question. Suppose a girl throw a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times. पहले तो देखो इस सिचुएशन को थोड़ा सा आप लिख लीजिए. जब 5 और 6 आता है कोइन को 3 टाइम्स वो रोल करती है. इफ सी गेट 1, 2, 3 और 4, वो कोइन को 1 टाइम टॉस करती है. And notes whether a head or tail is obtained. If she obtain exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 और 4 with the die? आराम से समझ लीजिएगा. B1 ले लिया, C threw 1, 2, 3 और 4. B2 ले लिया, C threw 5 और 6. E ले लिया, exactly one head. Okay, now let us make the diagram. आराम से बात समझ लेना. 1, 2, 3, 4 आने की डाई पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/6, दैट इज 2/3. ये कितना आएगा? 2/6, 1/3. अब इधर देख लीजिएगा, E गिवन B1. इस बात का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 आया और जब 1, 2, 3, 4 आता है उसने कोइन को कितने बार उछाला? एक बार. तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? एग्जैक्टली 1 हेड की, 1/2. E गिवन B2. अब उसने कोइन को कितने बार टॉस किया? 3 टाइम्स. तो एग्जैक्टली 1 हेड के कितने केस आएंगे भाई? 3 ही तो केस आएंगे. अगर पूरा सैंपल स्पेस आप बनाते हैं तो ये 3 केस बनते हैं 8 में से. ध्यान से देख लेना, एग्जैक्टली 1 हेड के यही बनते हैं. प्लीज टेल मी. बाकी Yes, sir. कितने? तो 3/8 Yes, sir. 3/8 आ गई प्रोबेबिलिटी. यहाँ गलती कर देता बच्चा. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने भाई? अब वो देख लो. B1 गिवन E टू फाइंड प्रोबेबिलिटी B1 गिवन E, जो कि आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू E गिवन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू E गिवन B2. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज यार. 2/3 इंटू 1/2 अपॉन 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8. And it is coming out to be 8/11. Please verify the answer. Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. डन? बोलो भाई. Yes, sir. अगला देखिएगा. A manufacturer has 3 machines A, B, and C. The first operator A produces 1% defective item, whereas the other operator B and C produce 5 and 7% defective item respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability it was produced by A? तो ये भी यार बहुत सिंपल है. आप सिंपल सी बात ले लीजिएगा. B1 ले लीजिए आप. क्या लेंगे? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए. बाय मशीन ए. B2 क्या ले लेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. B3 क्या ले लेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी. ई ले लिया डिफेक्टिव आइटम. ये लेंगे ना? हाँ जी. अब एक बात है, ये क्वेश्चन में सब कुछ तो दे रखा है. हमारे लिए बचा है क्या कुछ? कुछ भी तो नहीं बचा है. डायग्राम बनाना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. B2, B3 और यहाँ E. तो B1 का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है भाई? बताइए जरा. 50% है? 50/100.
दूसरा है 30/100, फिर है हमारे पास 20/100। अब इसके बाद इनके एरर रेट है। E गिवन B1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्लीज टेल मी व्हाट इज E गिवन B1? 1%। 1/100. फिर E गिवन B2 कितना दे रखा है? आई थिंक इट इज 5%। यस 5। 5. फिर E गिवन B3 वो कितना दे रखा है? निकालना क्या है? B1 गिवन E। तो टू फाइंड B1 गिवन E तो कितना आ जाएगा? 50/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 अपॉन 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। कितना आएगा भाई? सिंप्लीफाई करके जरा मुझे बताएंगे जरा, प्लीज टेल मी हाउ मच इट विल 50/340. 5/34. 5/34 is the answer. So please take the screenshot. Done? Yes, sir. Okay. देखिएगा जरा नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग डायमंड। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें आराम से समझ लीजिएगा। इसने क्या कहा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो मैंने B1 सीधा ये ले लिया, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। और B2 क्या ले लिया? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। E क्या ले ले? ये दे रखा, बोथ कार्ड्स आर डायमंड, कार्ड ड्रॉन आर बोथ आर डायमंड। अब आराम से समझ लीजिएगा प्लीज, अब यहां पूरा समझने वाली बात है। कितने डायमंड होते हैं भाई जरा बताएंगे मुझे? हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर? 13। 13. तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 13/52 1/4। B2 की कितनी आ जाएगी? 1 - 1/4 3/4। अब यहां से समझ लीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्या खो गया है? डायमंड खो गया है। तो एक डायमंड कम हो जाएगा तो कितने बच गए? 12। और यहाँ टोटल में कितने बच गए? 51। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दैट बोथ कार्ड आर अ डायमंड, यानी कि 12 में से कोई भी दो, 12 में से कोई भी दो कार्ड कितने में से चूज करोगे? 12C2 अपॉन 51C2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई। Yes, sir. ये बनेगा, मैं सीधा सीधा सोल्व कर रहा हूं, ये बनेगा आपका 12 फैक्टोरियल, ठीक है, और बाय, अगर मैं इसको देखिए सीधा ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 × 11 और ये बनेगा 51 × 50। कितना आएगा सोल्व करके? प्लीज टेल मी। दैट इज टर्निंग आउट टू बी 22 बाय, सोल्व कर लीजिएगा 425। अगले वाला देख लीजिएगा, E गिवन B2। अब आप बताइएगा जरा, क्या खो गया? कार्ड इज नॉट डायमंड, यानी डायमंड के 13 के 13 ऐसे रहे, लेकिन टोटल में से तो कोई एक कार्ड खोया, टोटल कितने बचे? 51। तो इस केस में डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 13C2 अपॉन 51C2। 51C2. क्योंकि उससे पहले वाले में डायमंड खोया था तो एक कम हो गया था, लेकिन अब अदर देन डायमंड खोया तो डायमंड तो 13 के 13 इंटैक्ट है। तो ये जो सोल्व होके आएगा ये ऐसे आएगा, 13 ×
12 अपॉन 51 इंटू 50, ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 26/425। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, B1 गिवन ई, टू फाइंड B1 गिवन ई, जो कि आ जाएगा 1/4 इंटू 22/425 अपॉन 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू 26/425, जो कि सिंप्लीफाई होके आता है 22/100, वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज, 11/50, दैट इज द आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डन? हाँ जी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see the next question. That will be the last question. Okay, one more. It means two questions are there. 13th question देखिएगा. Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that head appears. The probability that actually there was a head. तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में B1 ले लिया, actually there is a head. B2 क्या ले लेंगे, नॉट हेड। अच्छा E क्या लेंगे बताएंगे जरा, A स्पीक्स ट्रूथ, बना लीजिए डायग्राम, B1 B2 E, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 आ गई, इट इज 1/2, जस्ट वेट। इसकी क्या आएगी, E गिवन B1, बताइए जरा, हेड आया और उसने सच बोला तो कितना उसका प्रोबेबिलिटी, 4/5। E गिवन B2, हेड नहीं आया बट वो कह रहा है दैट इज एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, दैट इज 1 माइनस 4/5। प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. ये आ गया 1/5। तो अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव टू फाइंड। यहाँ पर एक और दे लीजिए, स्पीक ट्रूथ नहीं, ए रिपोर्ट्स ए हेड करिएगा यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर ए स्पीक्स ट्रूथ या रिपोर्ट्स हेड करिएगा, मैंने स्पीक्स ट्रूथ कह दिया बेटा, यहाँ इवेंट ए आएगा तभी सेंस बनेगा, ए रिपोर्ट्स हेड। अब बन गया ना सेंस, हेड आया और उसने बताया हेड ही है, Yes, sir. अब उसमें हेड नहीं आया और वो हेड बता रहा तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी, एक्चुअली देयर इज अ हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन E निकालना है, जो कि बन जाएगा 1/2 इंटू 4/5 अपॉन 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, जो कि सिंप्लीफाई हुआ आता 4/5। तो आपका यहाँ पर 4/5 ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट लिविंग फॉर यू एज अ असाइनमेंट, ठीक है भाई। एक्सरसाइज सारी समझ में आ गई, अब आपको प्लीज टेल मी, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए भाई। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तो यार ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए वाला, बेस थ्योरम वाला।